सो हेलो एवरीवन, फॉर लॉन्ग टाइम मैं दोबारा आप सबके सामने कुछ नया वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आई वॉज बिजी इन सम वर्क्स एंड माई जॉब, सो लास्ट कुछ सालों में कुछ कंटेंट लेके नहीं आ पाया इस चैनल पे, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ न्यू टॉपिक, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट लेके नहीं आऊंगा, आई विल बी वेरी फ्लेक्सिबल विथ माई टॉपिक्स। सो मैं किसी भी सब्जेक्ट में टॉपिक्स लेके आ सकता हूँ रैंडमली इफ आई फील दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और एनी जनरल डिस्कशन। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. So recently we have elections in Assam, that's on first week of April, assembly elections. So I feel this topic is going to be very important. काफी क्वेश्चन आते जाते रहते इस टॉपिक पे. Okay, so ECI. What is ECI? It's an autonomous constitutional authority. It does the job of in elections to the union, state elections, born in 1950, फलाना ढिमका, etc. etc. Okay. शायद आप सबको पता होगा इसके बारे में. What is a constitutional body? Just bear with my handwriting. It's very bad, I know. And statutory body. Any organization or any body which is formed based upon a direct writings on the constitution, that is called constitutional body. Or anything which is formed from a law or any act without having any mention in constitution, that is called statutory body. But ये ECI हम लोग इसको constitutional body क्यों कहते हैं? Because this ECI got mentioned in constitution directly under article number, जो next slide में हम लोग पढ़ेंगे, 324 to 329. ये article directly ECI के बारे में कहता है. So we call this body as a constitutional body. Next, what does it basically do? So इस सबसे पहले MP elections, right? Then assembly elections, then president का elections, then vice president का elections. ये सारा काम ECI कराती, right? So never get confused कि assembly election state election commission कराती है. That is another organization I will be discussing later on. It was formed for the first time in 25th January 1950. इसीलिए every year 25th January हम लोग celebrate करते हैं National Voters Day. ECI got mentioned in article number 324 but these articles have the mention in at part number 15. Constitution के अंदर different articles होते हैं, different parts भी होते हैं. So under part 15 these articles are mentioned, right? अब हम लोग पढ़ेंगे article number 324 से 329 तक. Each of these articles, इसमें सारा आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है. Only article number 324 and 326 very important from exam point of view. So what is the article 324? It gets superintendence, direction, control. Means article 324 एक बॉस आर्टिकल है. जितना भी इलेक्शंस को कंडक्ट कराना हो, डायरेक्शन देना हो, सब इस आर्टिकल के अंदर कहा गया. So article 324 directly mentions about ECI only. Then article number 325, it prohibits any discriminations, electoral rolls based upon sex, religion, caste. Then article number 326, it's very important article. ये जो हमारा एज है एडल्ट फ्रेंचाइजी का, जिसका भी एज बियॉन्ड 18 होता है, दे आर एलिजिबल टू वोट. ये आर्टिकल 326 डायरेक्टली इसके बारे में कहता है. Then article number 327, पार्लियामेंट कैन मेक इलेक्शन लॉज. पार्लियामेंट के ऊपर एक स्पेशल पावर दी गई कि आप लोग जब चाहे कोई लॉ बना सकते हो इलेक्शन को लेके. इसके अंदर ये बनाया गया आरपी एक्ट, राइट, 1950 and 1951. फिर आर्टिकल नंबर 328, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक आल्सो इलेक्शन लॉज. देन बार टू इंटरफेयर बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स. ये एक स्पेशल आर्टिकल है. इसमें इम्यूनिटी दी गई हमारे इलेक्शंस कमीशन को कि कोर्ट के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा इलेक्शंस के मैटर. एंड आर्टिकल नंबर 324 ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट, राइट. सो ये सब बेसिक आर्टिकल्स है. आर्टिकल 324 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर्टिकल नंबर 326 and article number 327. Okay. Coming to the structural evolution of election commissions, ECI, right? हम लोग ECI बोल रहे थे, Election Commission of India. It's a body, right? और एक बॉडी के अंदर इनिशियली क्या था 1950 से लेके there used to be single one person from 1950 to 1989 और इनको कहा जाता था CAC, Chief Election Commissioners, right? But 1989 में क्या हुआ? There was a two changes done in elections. One is our voting age was reduced from 21 to 18 and also two more member got added. और जो सिंगल मेंबर था इनको कहा जा रहा था CEC and इनको कहा जा रहा था इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट. बट 1990 में अगेन इट एबोलिश्ड एंड गॉट बैक टू वन मेंबर ओनली. ज्यादा दिन नहीं रुक पाया वन मेंबर से क्योंकि काफी ज्यादा काम हो रहे थे. So it couldn't be possible to carry out all the works by one single member. Again 1993 it got back to its 3-member. So currently we have ECI as 3 members, 1 CEC and
to election commissioners, right? So C is the boss and his subordinates are 2 election commissioners. So CEC ECs have equal power. Dispute settles by majority vote. Okay? अगर कोई भी dispute हो जाती है आपस में कि decision लेना है particular, तो majority vote देखी जाती है. Whatever majority comes out, the decision is taken on the directions. So who handles what? So one thing, ECI and SEEC, इसमें थोड़ा सा अंतर है, right? हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शन कमीशंस, so इलेक्शन कमीशन इट कुड बी सेंट्रल और इट कुड बी स्टेट लेवल, बट ECI जब भी बोलते हैं हम लोग, राइट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी टॉक अबाउट ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एट सेंट्रल लेवल ओनली. वी नेवर टॉक अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसका पावर काफी नैरो होता है. सो गेट बैक इनटू ECI, इट आई ऑलरेडी टोल्ड, इट डज द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ लोक सभा, राज्य सभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. बट स्टेट इलेक्शन कमीशन, राइट, ये डिफरेंट है. ये कंडक्ट कराती है पंचायत इलेक्शंस एंड ऑल्सो द म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन. सवाल आया, क्वेश्चन है कभी एग्जाम में, हु कंडक्ट्स स्टेट असेंबली इलेक्शंस. शायद हम लोग ये सोच सकते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती होगी स्टेट का असेंबली इलेक्शंस, बट दैट इज रॉन्ग. किसी भी स्टेट का, किसी भी यूनियन टेरिटरी का इलेक्शंस कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराती है. इट इज बीइंग कंडक्टेड बाय ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराती है किसी भी स्टेट का इलेक्शंस, राइट. और इसका भी SEC का भी अलग से पार्ट है, ये पार्ट 50 में नहीं आता है. 243 शायद इसका आर्टिकल होगा, इसका जी के आसपास कुछ है. जितना भी लोकल बॉडी है इसका आर्टिकल सारा 243 के अंदर आता है, और इसका आर्टिकल है 324 से लेके 329 तक. सो इफ यू डिवाइड द ECI पावर्स इनटू 3 सब हेडिंग्स, इट कुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, इट कुड बी एडवाइजिंग पावर्स, और इट कुड बी क्वासी जुडिशियल पावर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव बोले तो हम लोग द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी कराती है ECI, प्रिपेयरिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, फिर तुम्हारे इलेक्शन डेट्स एक्सेट्रा, ये सब कराती है. जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट होती है, राइट, ये सब सारा कराती है ECI. सो एडवाइजिंग पावर्स में होता कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देना कि किसी भी MPs का डिस्क्वालिफिकेशन हो, MLAs का डिस्क्वालिफिकेशन हो, गवर्नर को नोटिस देना. फिर किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल चल रहा होगा, द इलेक्शंस आर कुड बी कंडक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो और नॉट, ये भी एडवाइस देती है ECI. एंड द क्वासी जुडिशियल, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ECI, इसके पास कुछ क्वासी जुडिशियल का भी पावर है. क्वासी जुडिशियल का मतलब ये नहीं कि जुडिशियल, मतलब ये जुडिशियल की तरह कुछ पावर प्रोसेस करती है, इसको कहा जाता है क्वासी जुडिशियल. सो ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसका 2 रिकॉग्निशन होती है, एक होता है स्टेट पार्टी और एक होता है नेशनल पार्टी, राइट. ये दोनों रिकॉग्निशन कौन देता है? ECI देता है, राइट. और इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, particular party fulfills that particular criteria to become national party, they will be recognized as a national party. Then next is allocating national election symbols to particular candidates or parties, ये सब भी कराती है ECI. So ये सब जितना भी पावर है, राइट, ये सारे पावर अगर हम लोग अदर टर्म में बात करें ना, this administrative power, advising power और quasi judicial power, ECI, they all derive from, या तो कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली मेंशन करती है इसके बारे में कहीं ना किसी आर्टिकल पे, नहीं तो किसी पार्टिकुलर लॉ पे मेंशन किया गया. और अगर लॉ की बात करते हैं हम, राइट, RP एक्ट 1950 और RP एक्ट 1951 और RP 1950, अगर आपको किसी को पता है, ये बेसिकली तुम्हारा वोटर्स को लेके बात होती है, इसमें वोटर्स क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, और इस पे बेसिकली हम लोग की बात होती है कैंडिडेट्स के बारे में. इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, काफी लंबा चीज है, राइट. ये सब मतलब ये जो जितना भी पावर प्रोसेस करती है, इट डिराइव्स फ्रॉम 2 थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ. व्हाट इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इट मिस्ड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द टॉक अबाउट ECI. द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट ECI. बहुत सारी चीजें इसके बारे में, लाइक नो स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशंस. अब ECI तो उसने बोल दिया कि ECI होना चाहिए इलेक्शंस कराने के लिए, बट इसके अंदर मेंबर्स की कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में. सो ये एक ड्रॉबैक है. देन नो स्पेसिफाइड टर्म ऑफ लेंथ ऑफ मेंबर्स. ECI के अंदर कितना साल होना चाहिए, राइट, 5 इयर्स होना चाहिए, 6 ईयर होना चाहिए, इसके बारे में भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में ECI के बारे में. Then no ban on returning elections commissioners taking further government jobs. It's a part of conflict of interest. एक ECI members future में after retirement he could join a government service or other service, इसके बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन पे.
So these three things, if the constitution had mentioned these three things explicitly, then things could have, looked like they're very much fair and transparent. Maybe constitution thought कि it could be decided by parliament, by time, एक evolutionary scope पे छोड़ दिया गया on the parliament. Now coming to the who appoints, as per the new law, we have a scenario that selection committee is there. हम लोग इस पे डिटेल बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे 2023 ECs and CEC Act. अब फिलहाल just for the sake of understanding इसको समझ लेते कि election commissions it got appointed by the president by the advice of a selections committee. Then tenure is 6 years or 65 years, whichever comes to the earlier. Then salary and the conditions are exactly equivalent to the Supreme Court judge. So how to get fired? Okay, we'll discuss this later. When we talk about the new act, all these processes are actually mentioned in our Election Commission of India Act 2023. So just superficially, I'm talking about, okay, the commissioners can resign anytime, but powers to remove stick in return. Okay, so CEC member, the removal process of CEC is very hard. We cannot remove CEC chief very easily. It has to be go through a process of different process. That is, there has to be a process of special majority power. But बाकी दो election commissioner को remove करना काफी आसान है. We just need a suggestion from CEC. That's it. अब आता है Supreme Court का intervention. अब तक हम लोग जितना study किए last slide में कि the appointment process of election commissioners, it is done by president by special committee जो मैंने वहां पे mention किया था. ये special committee ये current scenario है. और ये स्पेशल कमिटी 2023 से पहले नहीं था. If I talk about before 2023, there has to be direct selections by president based upon the recommendation by prime minister. But काफी लंबा ये कंट्रोवर्सी चल रहा था कि रूलिंग गवर्नमेंट they have a upper hedge and इनका थोड़ा सा अलग ही मतलब चल रहा था, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन होता है कि केस था जिसका नाम था अनुप बरुणवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका वर्डिक्ट आता है 2023 पे. सो इट्स ए लैंडमार्क जजमेंट कि इस पे थोड़ा सा न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई इलेक्शन कमीशंस पे और थोड़ा सा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर लगे. तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अब तक जो कर रहे थे आप लोग करो, इट्स फाइन, ओके, बट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेम्स टू द प्रेसिडेंट हैज टू बी डन बाय ए सिलेक्शन कमिटी. और उस सिलेक्शन कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होना पड़ेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन होना पड़ेगा और एक जुडिशियरी मेंबर भी होना पड़ेगा, राइट. ये थोड़ा सा अलग हुआ. फॉर द फर्स्ट टाइम द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑल्सो उसके साथ जुडिशियरी को भी इंक्लूड किया गया ताकि थोड़ा सा न्यूट्रलिटी मेंटेन हो. सो हम लोग यहाँ पे देख सकते कि पहले एक 100% एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था इस इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रोसेस, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन होती है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का पावर थोड़ा सा कम की जाती है. स्टिल इट हैज अ मेजॉरिटी, बट by including Chief Justice of India in the selection committee, it tried to make out a balance of this selection process. So अगर हम लोग टाइमलाइन को देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया एज पर अनुप बरुणवाल केस कि आप सिलेक्शन कमेटी बनाओ, बट इसको क्या किए लेजिस्लेचर वाले कि उनको लगा कि अगर सीजीआई इंक्लूड हो जाएगा सिलेक्शन कमेटी में तो शायद थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव का पावर कम हो सकता है. तो उन्होंने कि सीधा एक लॉ निकाले अंडर द नेम ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ सीईसी एक्ट 2023, और इसमें ये लोग मेंशन किए चलो प्राइम मिनिस्टर रहेगा, एलओपी रहेगा एज पर अनुप बरुणवाल केस, बट इंस्टेड ऑफ सीजीआई वी विल इंक्लूड ए कैबिनेट मिनिस्टर, राइट. और ये कैबिनेट मिनिस्टर घुमा फिरा के पीएम का रिकमेंडेशन से बनेगा. मतलब यहाँ पे जुडिशरी को फुल्ली जीरो कर दी गई अंडर द न्यू लॉ. सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन होती है और यहाँ पे उसके बावजूद भी द व्हाट अबाउट द रूलिंग गवर्नमेंट दे ओवरराइड इट, जो कि 1970s में हो रहा था. सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रही थी और लॉज कुछ और कह रहा था. सो ये टसल बिटवीन the legislative part and judiciary part came into light. So currently we are following this law only. Okay, if we look very closely, Supreme Court ने यहाँ पे जो verdict दिया, they tried to make out a complete balanced approach. तो यहाँ पे तो Prime Minister who is a part of executive, right? Then CGI, he is a part of judiciary. Then LOP, he is a part of legislature. So हमारे democracy को तीनों जो organs है, executive, legislature and judiciary, तीनों को मिला के सिलेक्शन कमेटी बनाने की कोशिश की गई. बट अगेन द एग्जीक्यूटिव ऑलवेज हमेशा डोमिनेंट रहना चाहता है बाकी दो ऑर्गन से. सो इसलिए एग्जीक्यूटिव बाईपास द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दे मेड अ न्यू लॉ अंडर द नेम ऑफ ईसी एंड सीएसी एक्ट 2023. सो इसके अंदर पे कुछ और चीजें भी कहा गया लाइक टेन्यूर ऑफ ईसी सीएसी जजेस कमिश्नर्स. अब ये स्टैट्यूटरी बैकिंग में मिल चुका है इनको. इट्स लाइक 6 years और इट 65 years of age whichever comes earlier.
So 1991 Act, it was deregulated and a new act came into effect. So अब तक हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बारे में. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सिलेक्शन कमेटी बनाओ, उसमें एक पीएम होंगे, फिर एलओपी, फिर वहां पे सीजीआई रहेंगे. अब इसके रिस्पांस पे एग्जीक्यूटिव ने लॉ बनाया ईसीसी एक्ट 2023. अब इस लॉ के अंडर पे ये लोग बहुत सारी चीजें बोले कि चलो हम लोग सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे, बट हम लोग यहाँ पे सीजीआई के बदले रखेंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर. ठीक है, सिलेक्शन कमेटी बना दिए, आपके नाम के हिसाब से हम लोग रख लिए, बट बिफोर दैट सिलेक्शन कमेटी देयर हैज टू बी फिल्टरिंग प्रोसेस. तो फिल्टरिंग प्रोसेस के लिए उन्होंने एक कमेटी फिर से बना दिया, सर्च कमेटी. सारी चीज इस लॉ के अंडर हो रहा है, राइट. तो सर्च कमेटी में रहेंगे लॉ मिनिस्टर और 2 गवर्नमेंट सेक्रेटरी. तो इनका काम क्या है, 5 कैंडिडेट्स दे विल बी सिलेक्टिंग आउट, जो कि मिनिमम सेक्रेटरी लेवल का होना चाहिए. So out of these 5 candidates, the selection committee would be selecting only 1 candidate, and that 1 candidate would be selected as election commissioner by president. But यहाँ पे एक और स्पेशल पावर दी गई सिलेक्शन कमेटी को. अगर सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि whatever the 5 candidates are being preferred to them, तो ये किसी बाहर से भी किसी को भी रेफर कर सकते हैं एज ए इलेक्शन कमिश्नर. तो उनको लगता है कि सुटेबल नहीं है ये कैंडिडेट्स, तो इनको निकालो, आप किसी बाहर को भी ला सकते हो. So such a power they have, this selection committee. फिर आता है eligibility of election commissioners. See, eligibility के लिए I already told कि minimum secretary level का post होना चाहिए, and they requires high integrity and election management experience, all these theoretical concepts. फिर next is salary. See, एक election commissioner का salary has to be equal to a Supreme Court judge. Then next is removal process. So removal process of election commissioners, be it CEC और AC, CEC के लिए काफी मुश्किल होता है. We need special impeachment motion to remove CEC, और EC के लिए removal काफी आसान है. And tenure it is 6 years and 65 years of age, whichever comes earlier. One thing about this CEC Act 2023, they mentioned about reappointment, though they haven't specified anything about re-government service or induction of any service. But दोबारा ये लोग कभी इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन पाएंगे, इसके बारे में क्लियरली मेंशन है इस एक्ट के अंदर. So in a nutshell, हम लोग देख सकते हैं कि 3 timelines पे before 2023, how the Prime Minister used to be assisted by the Council of Ministers and he used to advise the President to appoint election commissions. फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आता है कि इस पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश की गई, इंक्लूडिंग सीजीआई. फिर आपका ये बैलेंस आउट कैसे एग्जीक्यूटिव फिर से दोबारा लॉ बना देते. सो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने लॉ बना के बाईपास किया और बर्नवाल केस को, बट ये लोग सिलेक्शन कमेटी को रखे कि सिलेक्शन कमेटी रहेगा, बट उसमें पीएम रहेंगे, एलओपी रहेंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, राइट. सो बेसिकली 2 out of 3 पीपल हैविंग अ मेजॉरिटी, दोनों गवर्नमेंट का रहेंगे, पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर. बस एलओपी थोड़ा सा अपोजिट कर सकते हैं चीजों को किसी ओपिनियन को लेके, बट वुड बी मिनिमल. बट ये जो मेजॉरिटी पावर है सिलेक्शन कमेटी का, उसमें से ये लोग शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 100% कंट्रोल ऑफ दिस सिलेक्शन कमेटी. देयर इज अ लूप होल बिकॉज़ दिस एलओपी इट्स अ चेयर, इट्स अ पोजीशन. ये पर्टिकुलर पार्टी फुलफिल करेगी तभी ये कोई एमपी बन पाएंगे एलओपी. इफ दैट पार्टी डजंट फुलफिल दैट क्राइटेरिया टू बिकम अपोजिट पार्टी, उस वक्त क्या होगा, ये एलओपी खाली रहेगा. तब ये सीधा पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर ही तय कर पाएंगे आराम से कौन बनेगा अगला इलेक्शन कमिश्नर, राइट. ये जो थोड़ा बहुत एक डिसेंट रहेगा सिलेक्शंस पे कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, दो इट्स वेरी माइनॉरिटी, ये आवाज भी दब जाएगा. तब अकेले कंट्रोल कर पाएंगे कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर. अगर इसका डिमेरिट्स या क्रिटिसाइज करना हो तो इस लॉ का, तो हम लोग लिख सकते हैं इट्स ए कंप्लीट वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. सुप्रीम कोर्ट ने कैसे तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग बैलेंस एक अप्रोच बनाने की सजेशन दी है, इसको बाईपास करके टोटल कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव कर दी गई अंडर द न्यू लॉ. फिर ये एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस अर्ली ऑन, राइट, कि सर्च कमेटी भी एग्जीक्यूटिव भी होंगे, फिर सिलेक्शन कमेटी में एग्जीक्यूटिव का मेजोरिटी रहेगा. फिर इट्स अ लॉस ऑफ डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी, राइट. द वोटिंग प्रोसेस हैज टू बी द फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. अगर वोटिंग प्रोसेस में भी थोड़ा सा डजंट लुक ट्रांसपेरेंट एंड फेयर, तो थोड़ा सा सवाल आ जाता है डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी के ऊपर. इफ यू टॉक अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स टाइमलाइन पे, तो इसमें मेजर चेंजेस जो हुआ है, 61st अमेंडमेंट एक्ट जो था 1988 में हुआ है, टू रिड्यूस आवर वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 80. उसके बाद 1998-99 में फॉर द फर्स्ट टाइम ईवीएम आया इंडिया में. उसके बाद स्मॉल चेंजेस तो होता गया, बट 2010 के आसपास हम लोग का जो वोटर्स का आईडी कार्ड, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इशू हुआ. फिर आता है वीवीपैट. सो वीवीपैट इज नथिंग बट ए ऑडिट मैकेनिज्म, जिसके तहत कोई वोटर चेक कर सकता है कि उसका वोट
जहां पे दी गई क्या सच में उसी कैंडिडेट को मिला कि नहीं मिला। इट्स ए फिजिकल वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। सो वीवीपैट हर जगह पे उपलब्ध नहीं है, ओनली सैंपल के तौर पे गिने चुने जगह पे ये मिलता है, ताकि ईवीएम और वीवीपैट मैच होना चाहिए, राइट। अगर कमिटीज की बात की जाए एट ए ग्लांस कि इसमें सारा कमिटीज याद करने की जरूरत नहीं, ओनली द इम्पोर्टेंट कमिटी इज the Indrajit Committee, which talks about the state funding of elections. The elections should be funded by the government itself. It's about state funding of elections. Then Ramnath Kovind Committee. And before that, Bohra Committee. Bohra Committee told about the criminalization of politics, the dark nexus between politics and criminals. And the most important committee was Ramnath Kovind Committee, which has been recently in fame. It talked about simultaneous elections, the one nation one elections. So current roadblocks. If you talk about the money power, there is a peculiar thing कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है किसी पार्टी के लिए, बट कोई कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ रहा है तो उसके लिए लिमिट है, depends upon the state, right? So it's a very peculiar thing. जो major party है इंडिया में, they can use these loopholes to bypass this money limit. Then criminalization of elections. As per the IDEA report, 46% of our elected MPs have criminal records. Then next is MCC violation. Star campaigner very often they break the rules of MCC. MCC बोले तो यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि यहाँ पे एक सर्टन रूल्स होता है, though it doesn't have any statutory breakings nor it doesn't have any constitutional breakings. एक सिर्फ एक रूल्स है कि आप ऐसा ना करो ऐसा करो, बिफोर इलेक्शन से पहले आप ये नहीं कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आप पोस्टर नहीं लगा सकते हो, एक एमसीसी वायलेशन। देन नेक्स्ट इज ईवीएम ट्रस्ट एंड रोल एरर्स। सिंस वी हैव 100+ crore populations, so there is a vast work to be done on the elections commissions. So ये सब चीजें एक हर्डल है इलेक्शंस कराने के लिए इंडिया में। So if you have to move forward to shift the process into a very much transparent and fix it out, we can bring all the political parties under RTI Act, right? फिर empowering ECI to revoke star campaigner if they break MCC rules. फिर कुछ छोटा मोटा points है, like linking Aadhaar to voter card, make it more transparent. But most important out of this, the Ramnath Kovind Committee suggestions, one nation one elections. It could be a futuristic idea, but इसमें काफी सारा debate हो सकता है, right? Pros and cons के लिए। Pros में हम लोग बात कर सकते हैं, it could reduce the government financial exchequer. फिर ये मतलब मैन पावर को भी कम कर सकता है, राइट। साल हर 2-3 साल में कितना इलेक्शन होता रहता है। बट कॉन्स में इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी है, इसको लोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी पार्टी इज इन सेंट्रल पावर, राइट, सो सेम टाइम पे देयर विल बी टेंडेंसी टू वोट फॉर दैट पार्टी ओनली इन स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑल्सो, इफ यू डू कंडक्ट असेंबली इलेक्शन एंड एमपी इलेक्शन एट द सेम टाइम। अगर हम लोग बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड पे हाउ द इलेक्टोरल प्रोसेस, हाउ द ईसीआई got appointed in different parts, कि यूएसए में फॉर एग्जांपल कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, बट इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ सेनेट। फिर अगर बात करते हैं हम लोग यूके के बारे में, तो यूके द हाउस ऑफ कॉमन शुड अप्रूव द कैंडिडेट्स, मींस तो वहां का जो पार्लियामेंट, जो वहां का लोकसभा है, दे हैव टू अपॉइंट द इलेक्शन कमीशन मेंबर्स। देन इफ यू टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीका, इट्स वेरी वेरी न्यूट्रल। साउथ अफ्रीका, वहां पे प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन, फिर उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, ऑल दिस पीपल मेक अप एंड सिलेक्शन होती है इलेक्शन कमीशंस की। So at the end, the credibility of an election is only as strong as the independence of the people conducting it. तो जहां अगर किसी भी देश में जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे इलेक्शंस है, वहां पे अगर इलेक्शंस कमीशंस अगर इंडिपेंडेंस एंड न्यूट्रलिटी ना हो, तो वहां पे क्रेडिबिलिटी की बात जरूर आएगी। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। आप प्लीज कमेंट कि मैं किस टॉपिक पे लेके आओ नेक्स्ट वीडियो। Thanks a lot for watching. Keep on studying, keep on doing hard work. Bye bye.